Hello students, I'm Ruchika from English Academy. Today we study a lesson in English for students of class 9th. The name of the chapter is My Childhood. It is written by APJ Abdul Kalam. This is an extract from his book Wings of Fire. Wings of Fire is his biography, and this chapter, My Childhood, talks about the childhood of APJ Abdul Kalam. We all know him. He was the President of India and he was a great scientist also. I was born into a middle-class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. Erstwhile means former. Now here you can see this is a section of the map of India, the state of Tamil Nadu. Here you can see Rameswaram. It is at the extreme corner, at the tip of the land. Actually it is an island. This is Rameswaram, the birthplace of APJ Abdul Kalam. So here APJ Abdul Kalam is telling us that he was born into a middle-class Tamil family. And the place Rameswaram is an island town. It is an island. It is surrounded by sea. That is the Bay of Bengal. In the erstwhile, that is the former Madras state. आज की डेट में स्टेट को हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, पर उस टाइम में जब वो बॉर्न हुए थे तब इस स्टेट का नाम था मेड्रास. इसीलिए वो कह रहे हैं इन द अर्स्टवाइल मेड्रास स्टेट, यानी कि पहले इस स्टेट को मेड्रास के नाम से जाना जाता था. My father, Jainulabdin, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. Innate means inborn, natural. So here, APJ Abdul Kalam is introducing his father. What was the name of his father? Jainulabdin. APJ says that his father was not very rich, he was not highly educated, but despite these disadvantages, he was not highly educated, he did not have lot of wealth, lot of money, but still he says he had some other qualities. That is great innate wisdom. Innate means inborn or natural. Jainulabdin was naturally very wise. And the second good quality that he had was he was generous. He had generosity of spirit. Generosity means being kind, being helpful towards others. So the two good qualities that he had were that he was very wise and he was kind-hearted. He had an ideal helpmate in my mother, Ashiyama. अब एपीजे की मदर का नाम है आशियामा. आइडियल हेल्पमेट का मतलब है एक ऐसी चीज जो वैसी है जैसे कि उसे होना चाहिए. तो एपीजे कह रहे हैं कि उनकी मदर उनके फादर की मदद करती थी. शी वॉज अ ग्रेट सपोर्ट एंड हेल्प टू हिम. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. एपीजे कह रहे हैं कि उनकी मदर भी बहुत जेनरस थी, बहुत काइंड हार्टेड थी. वो हर रोज बहुत सारे लोगों को खाना खिलाती थी. फेड मीन्स किसी को खाना खिलाना. एपीजे कह रहे हैं कि हमारे घर में जितने फैमिली मेंबर्स थे उनको अगर मैं टोटल कर लूं उससे तो ज्यादा, कहीं गुना ज्यादा, फार मोर आउटसाइडर्स यानी कि वो लोग जो उनके फैमिली के मेंबर्स नहीं थे वो उनके घर पर आकर खाना खाते थे. इससे ये पता चल रहा है एपीजे हमें बताना चाहते कि उनके पेरेंट्स इतने जेनरस थे, इतने हेल्पफुल थे, वो इतने सारे आउटसाइडर्स को, स्ट्रेंजर्स को भी खाना खिलाते थे. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. Undistinguished means ordinary or common. अब्दुल कलाम के बहुत सारे बहन भाई थे. वो कह रहे हैं कि मैं वन था आउट ऑफ मेनी चिल्ड्रन. तो उनके बहुत सारे सिबलिंग्स थे
और फिर वो अपनी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि मैं एक छोटी हाइट का लड़का था और मेरी लुक्स काफी कॉमन सी थी, कोई एक्सेप्शनल लुक्स नहीं थी मेरी, जबकि उनके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा टॉल और हैंडसम थे, बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग थे। तो एपीजे ने अपने पेरेंट्स से उनकी फिजिकल अपीयरेंस वाली क्वालिटीज इनहेरिट नहीं की। वो अपने पेरेंट्स की तरह लंबे और हैंडसम नहीं थे, वो छोटे से थे, शॉर्ट हाइट के थे और काफी कॉमन और ऑर्डिनरी लुक्स थी उनकी। We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. Ancestral means पुश्तैनी, जो कि बहुत सारी जनरेशन से आप यूज कर रहे हैं, आपका फैमिली हाउस। यहां पर आप देख सकते हैं, ये है इमेज एपीजे के एंसेस्ट्रल हाउस की, जिसे रेनोवेट करके आज की डेट में ऐसी लुक दे दी गई है। इनका ये जो एंसेस्ट्रल हाउस है ये बहुत पुराना है, 19th सेंचुरी की मिडिल में इसे बनाया गया था। It was a fairly large pakka house made of limestone and brick on the Mosque Street in Rameshwaram. Pakka house, we all know what is a pakka house, a house which is made of bricks, cement and limestone. तो यहाँ पे एपीजे कह रहे हैं कि उनका जो घर था वो काफी हद तक पक्का हाउस बना हुआ था, उसकी प्रॉपर छत डली हुई थी और वो कहाँ पर लोकेटेड है? मॉस्क स्ट्रीट, जो कि रामेश्वरम में है। So we all know what is the location of APJ's house? Mosque Street in Rameshwaram. My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. Austere means simple, strict and severe. तो एपीजे अपने फादर की एक और क्वालिटी बता रहे हैं कि उनके फादर बहुत सिंपल थे, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी थे, क्योंकि वो लाइफ को सिंपल वे में जीना चाहते थे। अपने बच्चों को भी यही सिखाते थे कि फालतू के खर्चे नहीं करने। वो कहते हैं कि किसी भी टाइप की इनएसेंशियल कंफर्ट्स और लग्जरीज को मेरे फादर अवॉइड करते थे। अवॉइड करना मीन्स उससे दूर रहना। तो वो अपने बच्चों को भी यही सिखाते थे कि फालतू की चीजों पर पैसे खर्च नहीं करने। हाउएवर, ऑल नेसेसिटीज, जितनी भी जरूरत की चीजें थी, जैसे कि खाना, दवाइयां, कपड़े, वो सब वो अपने बच्चों को पूरी तरह से प्रोवाइड करते थे। और फिर एपीजी की ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं, आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, both materially and emotionally. Materially means in terms of things like clothes, food, medicine, and emotionally means in terms of feeling, in terms of love and affection. Secure का मतलब है safe, सुरक्षित। तो यहां पर एपीजे कहना चाहते हैं कि उन्हें बचपन में हर टाइप की सुख और सुविधा उनके पेरेंट्स ने दी, चाहे कोई चीजें थी, चाहे प्यार था, उन्हें भरपूर मात्रा में उनके पेरेंट्स ने दिया। अब एपीजे की इस स्टेटमेंट से आप उनके बारे में एक क्वालिटी देख सकते हैं। क्या क्वालिटी है? ग्रैटिट्यूड की क्वालिटी है। ग्रैटिट्यूड मीन्स थैंकफुलनेस। एपीजे अपने पेरेंट्स को इतने थैंकफुल हैं, जबकि हम सबको पता है कि एपीजे एक इतनी बहुत ज्यादा वेल टू डू फैमिली को बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वो अपने पेरेंट्स को थैंकफुल हैं। जो कुछ उनके पेरेंट्स ने उनके लिए किया वो उसके लिए थैंकफुल हैं। ये क्वालिटी हम सब में होनी बहुत जरूरी है। और आप सब जैसे कि अभी चाइल्डहुड में हैं, आपके पेरेंट्स आपका ध्यान रखते हैं, यू शुड ऑल्सो फील थैंकफुल टुवर्ड्स योर पेरेंट्स फॉर वट एवर दे डू फॉर यू। ये जो क्वालिटीज हैं, बड़े होकर ये आपकी मदद करेंगे एक सक्सेसफुल इंसान बनने में। आगे स्टोरी पढ़ते हैं। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. From this, you can guess when was APJ born? He was born in the year 1931. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. Tamarind seeds means imli ke beej.
यहाँ पर देखिए, ये एक किस्म का फ्रूट होता है, पेड़ों पे उगता है, इमली। तो यहाँ पर एपीजे कह रहे हैं कि जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुई 1939 में, तो एकदम से मार्केट में इमली के बीज की डिमांड बढ़ गई। तो एपीजे क्या करते थे, वो इन बीजों को इकट्ठा करके मॉस्क स्ट्रीट पर एक राशन की दुकान को बेच आते थे, और पूरे दिन में जितने वो बीज बेचते थे उससे वो कितने पैसे कमा लेते थे। वो कह रहे हैं द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। 1 आना मीन्स एन ओल्ड इंडियन कॉइन वर्थ अबाउट 6 पैसे। पुराने टाइम्स में जब रुपी और पैसे नहीं चलते थे, तब आनास में पैसों को, मनी को काउंट किया जाता था। तो 1 आना है जो, दैट इज इक्वल टू 6 पैसे। तो आप देख सकते हैं कितनी वैल्यू है मनी की। वो कह रहे कि जो 1 आना वो कमाते थे वो भी एक प्रिंसली सम था। प्रिंसली सम मीन्स अ जेनरस अमाउंट, एंड ही इज बीइंग आयरॉनिक ओवर हियर। आयरॉनिक मीन्स जो आप बात कह रहे हैं मतलब उसका ऑपोजिट है। आप कहना चाह रहे हैं कि बहुत ही थोड़े से पैसे कमाता था मैं, सिर्फ 6 पैसे, लेकिन आप उसे प्रिंसली सम कह रहे हैं। यू आर बीइंग आयरॉनिक। आप ऑपोजिट कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता था पता नहीं मैंने कितने सारे पैसे कमा लिए, जबकि मैं सिर्फ 6 पैसे कमाया करता था। तो एपीजे ये कहना चाह रहे हैं कि पूरा दिन वो इतनी मेहनत करके इमली के बीज इकट्ठा करते थे, और जब उन्हें रोशन की दुकान पर बेचते थे तो उन्हें सिर्फ 6 पैसे मिला करते थे, लेकिन तब उन्हें वो 6 पैसे भी बहुत ज्यादा लगते थे। My brother-in-law, Jalaluddin, would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. Dinamani is the name of a Tamil daily newspaper. Tamil language में छपने वाला एक न्यूज़पेपर है दीनामनी। एपीजे अब्दुल कलाम के ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन। वो एपीजे को वर्ल्ड वॉर की कहानियां सुनाया करते थे, और बाद में एपीजे न्यूज़पेपर पढ़ते थे दीनामनी, और उसमें वो ही स्टोरीज को ढूंढा करते थे। Our area, being isolated, was completely unaffected by the war. But soon, India was forced to join the Allied forces, and something like a state of emergency was declared. Isolated means lonely and cut off. जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि रामेश्वरम की जो लोकेशन है वो एक आइलैंड पे लोकेटेड है। तो यहाँ पर एपीजे कहना चाह रहे हैं कि उनका जो एरिया है, रामेश्वरम का एरिया है, वो आइसोलेटेड था, वो लैंड से थोड़ा दूर था, और इसी वजह से वर्ल्ड वॉर का वहां पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद इंडिया को भी वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेना पड़ा। इंडिया ने एलाइड फोर्सेस को ज्वाइन किया। एलाइड फोर्सेस कौन सी हैं? द आर्मीज ऑफ यूके, यूएसए एंड रशिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जैसे कि हर वॉर में 2 पार्टीज होती हैं, 2 ओपोनेंट्स होते हैं, तो इंडिया ने जिस पार्टी को ज्वाइन किया उसका नाम था एलाइड फोर्सेस, जिसमें ये सब कंट्रीज शामिल थी। जब इंडिया भी वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेने लग गई तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। इमरजेंसी में क्या होता है? प्रेसिडेंट्स रूल लागू हो जाता है, कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता है, बहुत सारी जो प्रिविलेजेस दी जाती हैं लोगों को वो कर्टेल कर दी जाती हैं, वो खत्म कर दी जाती हैं। तो यहां पर एपीजे वर्ल्ड वॉर की बातें बता रहे हैं कि जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई तो उनके ब्रदर इन लॉ उन्हें उसकी कहानियां सुनाते थे, जो कि वो दीनामनी न्यूज़पेपर में पढ़ते थे। फिर वो कहते हैं कि शुरू शुरू में तो उनका जो एरिया है रामेश्वरम का, वो वॉर से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं था, वहां पे कोई असर नहीं पड़ा था कि वर्ल्ड वॉर चल रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब इंडिया ने भी एलाइड फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया, तब इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, और तब लोगों को एहसास हुआ कि वर्ल्ड वॉर चल रही है। The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at Rameshwaram station. The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi. Casualty means loss. तो जो पहला लॉस या फिर पहला इम्पैक्ट हुआ रामेश्वरम के लोगों पर वर्ल्ड वॉर का, वो क्या था? सस्पेंशन।
सस्पेंशन मीन्स द एंड टू समथिंग। किस चीज का सस्पेंशन हुआ, किस चीज का एंड हो गया? ट्रेन के हॉल्ट का। हॉल्ट मीन्स अ स्टॉप एट द रामेश्वरम स्टेशन। पहले जो ट्रेन है वो रामेश्वरम स्टेशन पर रुका करती थी। यहां इंडिया से आती हुई ट्रेन रामेश्वरम स्टेशन पर रुककर फिर आगे धनुषकोडी जाती थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर होने से क्या हुआ, ये जो हॉल्ट है, ये जो स्टॉपेज है, इसे कैंसिल कर दिया गया। ट्रेन सीधी ही इंडिया से धनुषकोडी की तरफ चली जाती थी। और उससे क्या होता था, जो भी न्यूज़पेपर्स का बंडल है जो कि ट्रेन में रामेश्वरम के लिए आता था, अब उसे चलती हुई ट्रेन से ही रामेश्वरम रोड पर फेंक दिया जाता था। That forced my cousin Samsudeen, who distributed newspapers in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally, I filled the slot. Filled the slot का मतलब है fit into a place easily. Naturally ही जब किसी को कोई काम की जरूरत है और उसे लगे कि आप उस काम के लिए बिल्कुल सही हैं, तो आप कह सकते हैं that I filled the slot. एपीजे अब्दुल कलाम के कजन थे जिनका नाम था शमसुद्दीन। वो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर्स बांटा करते थे। अब जब ये ट्रेन का स्टॉपेज कैंसिल कर दिया गया, न्यूज़पेपर्स का बंडल स्टेशन पर गिर दिया जाता था, तो उन्हें मदद चाहिए थी किसी की जो कि इस बंडल को कैच कर सके। और इस काम के लिए उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम की मदद मिली। Samsudeen helped me earn my first wages. अब जब अब्दुल कलाम शामसुद्दीन की मदद करते थे तो उसके बदले में वो उन्हें पैसे भी देते थे। Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. Surge of pride means sudden increase in the feeling of satisfaction derived from one's own achievements. Half a century later means after 50 years. सेंचुरी होती है 100 years की, हाफ सेंचुरी मीन्स 50 years. तो एपीजे कह रहे हैं कि 50 साल पुरानी बात है जो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, कि जब उन्होंने अपनी पहली इनकम, पहली वेजेस ली तो उन्हें कैसा महसूस हुआ। वो कह रहे हैं कि आज भी जब मैं उस टाइम को याद करता हूं तो एकदम से मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन फील होती है, अपने पे गर्व महसूस होता है। और वो ये कहते हैं कि जब भी कोई अपने पैसे, अपनी मेहनत से पैसे कमाता है, उसे ऐसी ही फीलिंग होती है। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. Figures of authority means a person who has authority over another person. A person who has the power to give orders or make decisions. As a child, एक child के लिए who is a figure of authority? His parents. And the next figure of authority can be his teacher. A person who has the authority over the child. ठीक है? तो इस सेंटेंस में एपीजे इज सेइंग दैट व्हेनेवर अ चाइल्ड इज बोर्न ही हैज सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। इनहेरिटेड मीन्स ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी क्वालिटीज जो कि आपने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की हैं बाय बर्थ। वो कह रहे हैं कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर सोशो इकोनॉमिक मीन्स मॉनेटरी वाइज कैसी टाइप की फैमिली में बॉर्न हुए हैं, कैसे टाइप के इमोशनल एनवायरनमेंट में आपका अपब्रिंगिंग हुआ है, वो सब चीजों से आपको कुछ पर्टिकुलर क्वालिटीज मिलती हैं। आपके पेरेंट्स आपको कुछ पर्टिकुलर क्वालिटीज देते हैं। एपीजे सेज, आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर. फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sisters. तो एपीजे कहते हैं, now he's telling us what are the qualities that he has inherited from his parents. From his father, he has inherited honesty and self-discipline, सच्चाई और अनुशासन. And from his mother, he has inherited faith in goodness, अच्छाई में बिलीव करना, and deep kindness, दयालुपन.
और वो कहते हैं कि यही क्वालिटीज मेरे तीनों बहन भाइयों ने भी मेरे पेरेंट्स से इनहेरिट की हैं। तो इन सभी ब्रदर सिस्टर्स को इनके पेरेंट्स ने ये क्वालिटीज इनहेरिटेंस में दी हैं। I had 3 close friends in my childhood, Ramanatha Sastri, Aravindan and Siva Prakasan. Now APJ is introducing his 3 close friends, his best friends in his childhood. Their names are Ramanatha Sastri, Aravindan and Siva Prakasan. All these boys were from orthodox Hindu Brahmin families. Orthodox means very strict. They follow their religion very strictly. And they belong to which religion? They were Hindus from Brahmin families. As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. Now, APJ belongs to a Muslim family. And he says that during the childhood, we all friends were so close to each other, they never felt that they belonged to different religions. Religion was not a barrier in their friendship. In fact, Ramanatha Sastri was the son of Pakshi Lakshmana Sastri, the high priest of the Rameshwaram temple. Now there is a very famous temple in Rameshwaram, the Rameshwaram temple, and here APJ is telling us that his best friend Ramanatha Sastri was the son of the priest of this temple. The name of the priest was Pakshi Lakshmana Sastri. Later he took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his father. Aravindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Shiva Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways. Now when these 3 friends grew up, Ramanatha Sastri took the priesthood of the Rameshwaram temple. Aravindan took a business of arranging transport for the pilgrims who were visiting the Rameshwaram temple. And Shiva Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways. So he was in charge of the catering for the railways, for the trains. Catering means train पर जो खाना पीना सप्लाई करते हैं, जो उनकी किचन को मैनेज करते हैं, उन्हें कहते हैं केटरर. तो एपीजे का जो थर्ड फ्रेंड था शिवा प्रकाशन, वो सदर्न रेलवेज की जितनी भी ट्रेन्स है वहां पर केटरिंग को मैनेज करता था. उसने उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था. During the annual Sri Sita Rama Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ram Tirtha, which was near our house. Rama Kalyanam ceremony is also known as Kalyan Utsav. It means marriage festival. साउथ इंडिया में मैरिज को क्या बोलते हैं? कल्याणम. तो राम और सीता की शादी को बोलते हैं सीता राम कल्याणम सेरेमनी. इट इज द सेरेमनी ऑफ द रीडिपिक्शन ऑफ द मैरिज बिटवीन सीता एंड राम. तो लॉर्ड राम एंड सीता की मैरिज को दोबारा से सारे लोग डिपिक्ट करते हैं, यानी कि उसको फिर से एनैक्ट करते हैं कि उनकी शादी हो रही है दोबारा से. भगवान जी की शादी करवाते हैं. उसे कहते हैं श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी. तो जब भी ये सेरेमनी होती थी, इस सेरेमनी में एपीजे अब्दुल कलाम की फैमिली भी पार्टिसिपेट करती थी. वो क्या पार्टिसिपेट करती थी? वो बोट्स अरेंज करती थी और वो इन बोट्स के ऊपर एक स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाते थे जिस पर ये मूर्तियों को ट्रांसपोर्ट किया जाता था. सीता और राम की मूर्ति को इस प्लेटफॉर्म पर रखकर बोट द्वारा मंदिर से मैरिज साइट पर ले जाया जाता था. मैरिज साइट मीन्स वो जगह जहां पर इन मूर्तियों की शादी की जाती थी. और ये जो मैरिज साइट है, ये एक तालाब के बीचों बीच लोकेटेड था. तालाब का नाम था राम तीर्था और ये पॉन्ड एपीजे अब्दुल कलाम के घर के बहुत पास था. So from this, APJ wants to tell us that there was no religious barrier in his life. जब वो बड़े हो रहे थे तो उन्होंने कभी ये फर्क ही नहीं सोचा कि हिंदू और मुस्लिम में कोई फर्क होता है. हिंदूज के फेस्टिवल में भी वो लोग बहुत दिल से, बहुत खुशी से पार्टिसिपेट करते थे. ये जो फेस्टिवल होता था श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी, जिसमें के
लॉर्ड राम एंड सीता की आइडल्स की शादी करवाई जाती थी, इसमें एपीजे अब्दुल कलाम की फैमिली बोट्स अरेंज करती थी, जिन बोट्स के प्लेटफॉर्म पर इन आइडल्स को रखकर मंदिर से मैरिज साइट पर ले जाया जाता था। ये जो मैरिज साइट थी ये राम तीर्था नाम के पॉन्ड के बीच में थी और ये पॉन्ड एपीजे के घर के बहुत पास था। Events from the Ramayana and from the life of the Prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. बचपन में सभी ने बेड टाइम स्टोरी सुनी है, सभी की ममा ग्रैंड ममा उन्हें कुछ कहानियां सुनाती हैं। एपीजे सेज दैट they listened to stories from Ramayana and from the life of the Prophet, both. So they would listen to stories of Hindu gods and of Muslim gods. तो कोई फर्क नहीं था उनकी अपब्रिंगिंग में रिलीजन की वजह से। सभी कहानियां उन्हें उनकी मदर और ग्रैंड मदर सुनाया करती थी। One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramanatha Sastri who wore the sacred thread. अब जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम एक मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करते थे, वो अपने सिर पे कैप पहना करते थे जिससे आइडेंटिफाई होता था कि वो मुस्लिम है। और उनके फ्रेंड रामानाथा शास्त्री जो कि रामेश्वरम टेम्पल के प्रीस्ट के बेटे थे, जो कि एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे, वो अपने गले में ये सेक्रेट थ्रेड पहना करते थे जो कि ब्राह्मण्स पहनते हैं। जब ये बच्चे क्लास 5 में थे, इनकी क्लास में एक नए टीचर आए। क्या इंसिडेंट हुआ आगे पढ़ते हैं। The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. Stomach means could not tolerate. अब ये जो नए टीचर आए इनकी क्लास में, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि एक हिंदू प्रीस्ट, एक पंडित जी के बेटे के साथ एक मुस्लिम लड़का बैठा हुआ है। In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. टीचर ने एपीजे को कहा कि यहां से खड़े हो जाओ और जाकर आखिरी एंड की सीट पर जाकर बैठ जाओ, क्योंकि तुम सोसाइटी के लोअर रैंक को बिलोंग करते हो। I felt very sad and so did रामानाथा शास्त्री। दोनों बच्चों को बहुत दुख हुआ, एपीजे को और उनके फ्रेंड रामानाथा को भी। He looked utterly downcast. Downcast means sad or depressed. As I shifted to my seat in the last row. जब एपीजे ने अपनी सीट चेंज की और वो पीछे की सीट पर जाकर बैठ गए, रामानाथा को बहुत बुरा लगा। The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. एपीजे कहते हैं कि जब मैंने देखा कि मेरा दोस्त रो रहा है, वो जो उसकी शक्ल थी वो देखकर इट लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी मीन्स उसकी ये जो फीलिंग्स हैं कि वो इतना दुखी था कि वो रोने लग गया, ये फीलिंग्स एपीजे के दिल को छू गई और पूरी जिंदगी के लिए वो इस चीज को भुला नहीं पाए। After school, we went home and told our respective parents about the incident. Lakshmana Sastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. Summon means called. लक्ष्मणा शास्त्री कौन है? ये रामानाथा के फादर हैं, रामेश्वरम टेम्पल के प्रीस्ट। दोनों बच्चों ने घर जाके अपने पेरेंट्स को ये इंसिडेंट के बारे में बताया और रामानाथा के फादर लक्ष्मणा शास्त्री ने इस टीचर को बुलाया और उसे डांटा और उसे कहा कि बच्चों के दिल में सोशल इनइक्वालिटी यानी कि भेदभाव, जाति के बेसिस पर भेदभाव करना और रिलीजन के बेसिस पर भेदभाव करना, ऐसी जहरीली बातें बच्चों के दिलों में मत डालो। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. Bluntly means speaking in a direct and honest way, even if this offends or upsets people. Apologize means to seek pardon. Quit means to leave. Now Lakshmana Sastri was very clear in himself. He asked the teacher
that either you ask sorry for what you have done or else leave the school and Rameshwaram also. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Sastri conveyed ultimately reformed this young teacher. Conviction means a strong opinion or belief. जब आप किसी चीज में बहुत ही गहरी तरह से बिलीव करते हैं. Conveyed means communicated, किसी को बताना. तो यहाँ पर एपीजे कहते हैं कि टीचर ने अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी और लक्ष्मणा शास्त्री की डिटर्मिनेशन और कन्विक्शन देखकर उनमें भी बदलाव आ गया, उनकी भी सोच बदल गई. So here APJ tells us that Lakshmana Sastri, who was the priest of Rameshwaram temple, he also did not believe in distinction on the basis of religion. वो भी जाति या धर्म के बेसिस पर भेदभाव करने में बिलीव नहीं करते थे. और जब इन बच्चों के स्कूल के टीचर ने ऐसी जहरीली बातें बच्चों के दिल में डालने की कोशिश की तो उन्होंने इस टीचर को डांटा और बड़े ही ब्लंट वे में उसे कहा कि या तो तुम माफी मांगो या फिर रामेश्वरम छोड़कर चले जाओ. उनकी इस एटीट्यूड को देखकर टीचर ने माफी भी मांग ली और साथ ही साथ उसमें भी बदलाव आ गया. वो भी जाति और रिलीजन के भेदभाव करने से ऊपर उठ गया. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. Rigid means strict, segregation means separation. However, my science teacher, Siva Subramania Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. Orthodox means one who follows the religion strictly. Conservative means traditional and rebel means in opposition to something. तो यहाँ पर एपीजे कह रहे हैं कि रामेश्वरम की सोसाइटी यानी कि जितने भी लोग थे रामेश्वरम में वो अलग अलग सोशल ग्रुप्स की डिस्टिंक्शन को बहुत ही अच्छे से फॉलो करते थे. क्या सोशल ग्रुप्स हुआ करते थे, मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री या सिविक्स के बारे में बताती हूँ. हमारी सोसाइटी में 4 सोशल ग्रुप्स थे जो कि बेस्ड थे आपके बर्थ पर और आपके कामकाज पर. पहला ग्रुप था ब्राह्मण का जिसे कि लर्नड मैन कहा जाता था. दूसरा ग्रुप था क्षत्रियस का जिन्हें वॉरियर्स कहा जाता था. थर्ड ग्रुप था वैश्यास का जो कि ट्रेडर्स हुआ करते थे. एंड फोर्थ ग्रुप था शूद्रास का जो कि सर्विस क्लास थी. तो ये 4 ग्रुप्स की जो कैटेगरीज बनी हुई थी सोसाइटी में, इन्हें रामेश्वरम में बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था. लेकिन एपीजे के साइंस टीचर थे जिनका नाम था शिवा सुब्रमण्य अय्यर. ही वॉज अ रिलीजियस पर्सन, ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण. वो अपने ब्राह्मण रिलीजन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे और उनकी वाइफ बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप की थी. वो भी इन कास्ट सिस्टम को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी. लेकिन शिवा सुब्रमण्यम अय्यर एक रेबल टाइप का इंसान थे. वो इस कास्ट सिस्टम को इतनी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते थे. ऑल्दो वो अपने ब्राह्मण रिलीजन को स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे लेकिन वो ऐसे डिस्टिंक्शन में बिलीव नहीं करते थे. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. Mingle means to interact with each other. Siva Subramaniam Iyer, he worked very hard to break these social barriers of caste system. He wanted that people of different caste should interact with each other. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. On par means at the same level. Siva Subramaniam Iyer APJ Abdul Kalam को encourage करते थे, उन्हें प्रोत्साहन देते थे कि तुम भी मेहनत करो ताकि तुम भी बड़े शहरों के पढ़े लिखे लोगों की तरह बन पाओ. One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. Ritually pure kitchen का मतलब है kept protected from all outside influences for the observances of religion. जैसे कि सुब्रमण्यन अय्यर की वाइफ बहुत ही ट्रेडिशनल और ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से थी, वो अपनी ब्राह्मण रिलीजन को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी
और किचन को शुद्ध रखना, यानी कि वहां पर किसी और रिलीजन के लोगों की एंट्री को बंद रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिलीजन को फॉलो करने का। तो जब सुब्रमण्यम अय्यर ने एपीजे अब्दुल कलाम को अपने घर खाने पर इनवाइट किया तो उनकी वाइफ तो घबरा गई, डर गई कि एक मुस्लिम फैमिली का लड़का उनके घर आकर उनकी किचन में खाना खाएगा तो उनकी किचन अशुद्ध हो जाएगी, इम्प्योर हो जाएगी। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। उन्होंने एपीजे को खाना सर्व करने से मना कर दिया। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. Perturbed means being upset, dukhi hona. So when his wife refused from serving food to APJ, Shiva Subramania Iyer was not upset, he was not angry, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खुद ही एपीजे को खाना सर्व कर दिया और उनके साथ बैठकर खाना खाने लग गए। His wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. शिवा सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ किचन के दरवाजे से खड़ी होकर उन्हें खाना खाते हुए देख रही थी एंड एपीजे सेज कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें मेरा खाना खाने के तरीके में, पानी पीने के तरीके में और फ्लोर साफ करने के तरीके में कोई फर्क नजर आया होगा। So what he wants to say? He wants to highlight that either he is a Muslim or he is a Hindu. Religion does not matter. Religion does not differentiate in the way a person eats food. वो कह रहे हैं कि खाना खाने का तरीका तो सभी लोगों का एक ही जैसा होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। When I was leaving his house, Shiva Subramania Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. जब एपीजे घर से जा रहे थे तो उनके टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने उन्हें कहा कि तुम अगले वीकेंड फिर से आना डिनर के लिए। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. Hesitation का मतलब है doubt और delay. Confronted means faced और tackled. जब शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने देखा कि एपीजे अब्दुल कलाम दोबारा से डिनर पर आने के लिए हेजिटेंट हैं, वो इस चीज को मान नहीं रहे हैं, तो उन्होंने एपीजे को कहा कि तुम दुखी मत हो। अगर तुमने ये फैसला कर ही लिया है कि तुम इस सिस्टम को चेंज करोगे, इफ यू वांट टू गो अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, you have to be strong and brave and you have to confront the situation. आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। When I visited his house the next week, Shiva Subramania Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. अब ये देख सकते हैं आप बदलाव आया है शिवा सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ में। एपीजे कहते हैं कि जब मैं अगले वीकेंड उनके घर डिनर पे गया तो उन्होंने खुद अपने हाथों से मुझे अपनी किचन में बिठाकर खाना सर्व किया। दिस इज द चेंज। उनके टीचर शिवा सुब्रमण्यम उन्हें यही बताना चाहते थे कि दुखी मत हो, सिचुएशन का सामना करो और चीजें सुधर जाएंगी। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Imminent means about to happen. सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी 1945 में एंड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। एपीजे सिंह जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई 1945 में तो इंडिया को भी आजादी मिलने ही वाली थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, डिक्लेयर्ड गांधी जी। गांधी जी जो कि बहुत ही क्रूशियल हिस्सा थे इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में, he said that Indians will build their own India. The whole country was filled with an unprecedented optimism. Unprecedented means never done or known before. And optimism means hope and cheer. पूरा इंडिया होप और खुशी से भर गया था। The whole country was full of optimism. सभी लोगों के दिल में एक खुशी थी जो कि पहले कभी किसी ने महसूस नहीं की थी। सभी लोगों को ये महसूस हो रहा था कि अब उन्हें आजादी मिलने वाली है। ऑब्वियसली जब आप इतने सालों से किसी के गुलामी में रहे हो तो जब आपको आजादी मिलने वाली है, आजादी का एहसास ही आपको एक ऐसी खुशी दे देता है जो कि आपने पहले कभी महसूस ना की हो।
ऐसी ही कंडीशन थी पूरे इंडिया की। I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. एपीजे रामेश्वरम से रामानाथापुरम जाना चाहते थे, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स था। यहां पर आप देख सकते हैं, ये है रामानाथापुरम डिस्ट्रिक्ट, ये है रामानाथापुरम सिटी, ये है रामेश्वरम जहां पर एपीजे रहते थे। तो वो अब रामेश्वरम से हायर स्टडीज के लिए रामानाथापुरम जाना चाहते थे। He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? Seagull is a bird. यहां पर आप देखते हैं, this is a seagull. रिप्लाई में एपीजे के फादर ने उन्हें कहा कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें दूर जाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें आगे जिंदगी में बढ़ना है। और फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ये जो सीगुल है ये भी तो आसमान में उड़ती है, दूर कितनी दूर उड़ उड़ के जाती है अकेली, और इसका कोई साथ में नेस्ट भी नहीं होता, मीन्स इसका कोई घर भी नहीं होता। ये अभी अपना घर छोड़कर आसमान में इतनी दूर दूर तक उड़ती है। तो एपीजे के फादर ने उन्हें हिम्मत दी, उन्होंने उन्हें कहा कि हाँ, मुझे भी पता है कि तुम्हें आगे बढ़ना है, और अगर आगे बढ़ना है तो तुम्हें उसके लिए अपना घर छोड़ के सीगुल की तरह हवा में उड़ना होगा। He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. Longing means desire, chahat. This is an excerpt from Your Children, a poem written by Khalil Gibran. अब जब एपीजे की मदर को ये पता चला कि वो घर छोड़कर रामानाथापुरम जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, हो सकता है वो थोड़ी सी दुखी हुई हो, और उन्हें शांत करने के लिए एपीजे के फादर ने उनकी मदर को ये कहा। ये जो लाइंस उन्होंने कही ये खलील जिब्रान की फेमस पोएम योर चिल्ड्रन से ली गई हैं। तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, ये जिंदगी के बच्चे हैं। तुम्हें जिंदगी ने आगे बच्चे दे दिए तो ऐसे मत समझो कि तुम्हारा इन पे रूल चलेगा। इनके अपने थॉट्स हैं, इन्हें आजादी दो ताकि ये अपने थॉट्स को पूरा कर सकें। सो दैट इज हाउ ही ट्राइड टू कन्विंस APJ's mother to let him go to Ramanathapuram for higher studies. So with this story, my childhood comes to an end. Thank you for watching this video. For more videos, please subscribe to our channel, English Academy.